Hello everyone and welcome to our YouTube channel Vision Civil Service. So as you all know, my name is Lakshita and I am a faculty of Political Science and Current Affairs at Vision Civil Service. Our director name is Anil Kumar sir and he has been serving in this industry for a long time now. हमारी जितनी भी faculty है, they are very experienced and they too are a part of this coaching from a long time. सेकेंडली टॉकिंग अबाउट विजन सिविल सर्विस, हमारी अकेडमी फ्री टू डेमो क्लासेस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को एंड हमारे जो टाइमिंग्स हैं दे आर वेरी सूटेबल फॉर एवरी पर्सन वेदर यू आर स्टडिंग और वेदर यू आर वर्किंग. सो यू कैन हैव अ विजिट टू आवर इंस्टीट्यूट एंड यू कैन join our institute as soon as possible so that you can clear your exams with great marks. Next, we also have batches available for students who are either working, so we also provide weekend batches for them. We also have study material of vision so that you don't have any difficulty in understanding anything and you don't have to search for other sources. Let's start a session today and we'll be discussing daily current affairs today. सो एज़ यू ऑल नो दैट हमारा स्टडी मटेरियल बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है एंड हमारी फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस है एंड वी प्रोवाइड मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स, मेंस, syllabus and we focus also on essay writing, CSAT, prelims test series and mains test series also. We also have classes for optional subjects, so you don't need to worry. आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी for the optionals. And plus we have interview guidance provided in our institute that is part of our बैच ओनली. ठीक है, आपको अलग से उसके लिए भी फ़ीस नहीं देनी है, पूरा आपको इसी के अंदर मिलेगा जो भी आप बैच में एनरोल करेंगे. एंड यू नो हमारा एड्रेस है नोएडा 6 सेक्टर 15 में नियर नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी. ओके, सो यू कैन डू विजिट आर लाइब्रेरी, डू विजिट आर इंस्टीट्यूट एंड प्लस यू कैन ऑल्सो गो टू आर वेबसाइट दैट इज़ visioncivilservice.com. सो कमिंग टू आर टुडेज सेशन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स विद एडिटोरियल ऑफ 30th September 2024. सो वी हैव डिवाइडेड दिस न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द GS सब्जेक्ट्स. सबसे पहला हो गया हमारा GS टॉपिक 1, इंडियन सोसाइटी, in which we will be talking about 92% of workers cleaning urban sewers, septic tanks from SC, ST, OBC group survey. Okay, next is our prelims fact about Lebanon, Hezbollah. Third is our GS environment topic of glaciers and natural disaster and change in the climate. Next is science and technology, that is GS paper 3. Nothing, not just nothing, dark matter quest close in on dire neutrino fog. So it's about fog and other its impacts. Then is the news that is going in our country, Jordan related. And last we'll be talking about our editorial analysis that is of Indian economy and agriculture. Okay, starting with the first topic. Our first news clipping is 92% of workers cleaning urban sewers, septic tanks from SC, ST, OBC group survey. So according to a survey that has been conducted, गवर्नमेंट डेटा में फाइंड किया गया है दैट अराउंड 3000 urban local bodies across all our 29 states and UTs show that around 91.9% of the 38,000 sewer and septic tank cleaners, it's an estimated number according to the government survey कि 38,000 हमारे पास sewer और septic tank cleaners हैं and among that around 82% of them belong to the SC, ST and OBC communities. ओके, तो ये रीज़न क्या है, वील टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस कि पूरे आर्टिकल में बेसिकली क्या पॉइंट्स पे फोकस किया गया है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव. तो व्हाट आर द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंगेज इन सीवर एंड सेप्टिंग, मतलब उनका बेसिकली क्या सोशल और क्या इकोनॉमिक ऐसा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से दे आर डूइंग दिस वर्क, दोज हु आर डूइंग इन दिस industry. That is a significant majority, 91.9% of the 38,000 belong to marginalized community. Okay, मतलब जो communities below basically margin से नीचे हैं, you can consider them into below poverty line also. ठीक है, and what are these communities basically? SC, ST and OBC.
ओके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. सो एससी का जितना परसेंटेज आया, दे आर 68.9%, अदर बैकवर्ड क्लासेस का है 14.7% एंड शेड्यूल ट्राइब्स का है 8.3% and only 8% from the general category. This tells about the employment status of the lower classes. ओके, ये हमें इन तीनों क्लासेस के इकोनॉमिक स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बताता है. दैट द वर्क फोर्स दे यूजली कंप्राइजेज ऑफ द लो इनकम इंडिविजुअल्स. ठीक है, कि इसमें जितने भी हमारे मोस्टली लोग फाइंड करे जा रहे हैं, दे आर ऑफ लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड दे आर engaged in such hazardous, that are life threatening, low status job, reflecting persistent class based disparities. तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी जो उनका स्टेटस है, इट्स नॉट इम्प्रूव, दे आर लिटरली फेसिंग कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज़. कि क्योंकि आप देख लो जनरल के सिर्फ 8% लोग इन्वॉल्व हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल दी 3 क्लासेस, इनके अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जो हमारे सोसाइटी में चलता है ना, तो इस क्लास को बिलोंग करता है, तो इस क्लास को बिलोंग करता है, तो नीची जात का है, तो ऊंची जात का है, वो अभी भी चल रहा है. एंड दस बिकॉज ऑफ दिस दे हैव टू वर्क इन सच एरियाज. एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज the Namaste program that gives 2.26 crore in capital subsidies, and that has been distributed to 191 beneficiaries, indicating financial support for the transitioning into self employment. इस प्रोग्राम के अंदर हम 191 बेनिफिशरीज को सब्सिडीज प्रोवाइड कर चुके हैं. दैट वी गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पीपल, जिससे कि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले फेज में कन्वर्ट हो जाए. अब how effective and current policies and rehabilitation scheme for sanitation workers. क्या पॉलिसीज़ आनी चाहिए, क्या स्कीम्स आनी चाहिए इन सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, क्योंकि यू नो दिस टास्क इज़ नॉट एन ईजी वन. ऐसे सर्कमस्टांसेस पे काम करना, व्हाट दे आर डूइंग इज़ वेरी हार्ड. ठीक है, सैनिटेशन का वर्क इज़ यू नो आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन. हर कोई इस काम में हाथ भी नहीं डाल सकता है. तो हम उनके लिए क्या ऐसी पॉलिसीज़, क्या स्कीम्स ला सकते हैं जिससे इफ़ दे आर डूइंग दिस वर्क उनको कुछ बेनिफिट तो मिले. द फर्स्ट वन इज़ द नमस्ते प्रोग्राम. तो इसमें दे हैव एम्ड एट मैकेनाइजिंग सीवर क्लीनिंग एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट. ठीक है, कि इसमें हम उनको क्लीनिंग और सेफ्टी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि यू नो उनकी जान पे बात ना है, देयर लाइफ इज़ नॉट थ्रेटन ड्यू टू दिस वर्क. ओके, और उनको ट्रेनिंग मिलेगी. सो एंड इफ़ वी मैकेनाइज इट, मतलब अगर हम इसमें टेक्निक्स और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मशीन्स का यूज़ करने लगें. ठीक है, जो कि काम अभी वो लोग हाथ से भी करते हैं, तो अगर हम मशीन्स के थ्रू उसको करने लगेंगे, देन इट कैन यू नो इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑल्सो. And replacement for the self-employment scheme for rehabilitation of the manual scavengers. जो हाथ से करते हैं ना स्कैवेंजिंग, कूड़ा ये जो बीनने वाला चीज़ होता है, उसको हम चेंज करके उनको कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज द इन्यूमरेशन प्रोसेस इन विच ओवर 3,326 अर्बन लोकल बॉडीज़ आर इन्वॉल्व. अर्बन लोकल बॉडीज़ यू आर अंडरस्टैंडिंग, एक होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, वो अर्बन बॉडीज़ में आ जाता है. इसमें 38,000 वर्कर्स हैं, जो कि अभी उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया है. 238 इसमें रिपोर्टेड ज़ीरो वर्कर्स, सजेस्टिंग दैट द प्रोफाइलिंग माइट नॉट बी कॉम्प्रिहेंसिव और दैट मैनी वर्कर्स आर अनरिकग्नाइज. और इसमें ये भी बोला जा सकता है कि कितने ऐसे वर्कर्स होंगे जिनको तो रिकग्नाइज ही नहीं करा गया है, शायद जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं करा रखा है कि हम ये काम करते हैं, बट दे ऑल्सो डू दिस वर्क, है ना. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हो रही होंगी अर्बन लोकल बॉडीज़ में ही. एंड आउट ऑफ द रिहैबिलिटेशन सक्सेस व्हाट वी आर डूइंग, आउट ऑफ 58,098 आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स अंडर द प्रीवियस SRM स्कीम, कितने हमने पहले आइडेंटिफाई किए थे मैनुअल स्कैवेंजर्स? 58,098. उसमें से 97.2 SC कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे. ठीक है, एंड cash transfer of 40,000 were provided, only a fraction pursued skills training or loan for alternative livelihood. और उनको 40,000 का हमने कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स के अंदर करा था, बट उनमें से कुछ ही फ्रैक्शन के लोगों ने स्किल ट्रेनिंग या फिर कुछ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड लेने के लिए लोन्स भी लिए हैं.
मतलब इसका मतलब है कि अभी भी उसमें से बहुत कम लोग हैं जो अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, या मे बी ड्यू टू एनी अदर रीज़न कुछ ही लोग हैं जो स्किल्स ट्रेनिंग या और अपने लाइवलीहुड ऑप्शंस को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हाँ इसके अलावा भी हम कोई और काम में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक पॉलिसी स्कीम्स में आ जाता है। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके इन लोगों के लिए, दैट सोशल स्टिग्मा प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मतलब SC ST और OBC, दीज वर्कर्स फेस डिस्क्रिमिनेशन। पहले तो इन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है वो नहीं मिल पाती हैं, एंड जो वो सोशल मोबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं उसको वो नहीं ले पाते हैं। सेकेंड इज़ द हेल्थ रिस्क। यू नो दिस फील्ड, दिस वर्क रिक्वायर्स आपकी हेल्थ को बहुत ख़राब डिटोरेट कर सकता है। तो इफ़ exposure to such hazardous working condition can lead to health risk with a high mortality rate। इसमें जो मोर्टालिटी रेट है वो भी डिस्कस करा गया है, दैट 377 डेथ्स फ्रॉम 2019 to 23 देखी गई हैं, दैट दिस इज़ एन अनसेफ प्रैक्टिस जो करते हैं लोग बिकॉज ऑफ कि मैकेनाइजेशन नहीं है, ऐसी कंडीशंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइडेड है, खुद से करना शुरू कर देते हैं लोग काम, है ना। तो हेल्थ रिस्क तो है ही इसमें, एंड दिस नंबर शोज़ कि हाँ आपको इसके लिए कुछ ना कुछ इफेक्टिव चीज़ तो लानी पड़ेगी टू चेंज कि मैनुअल स्कैवेंजिंग रुक जाए। इन इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन, करंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स लैक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। इतनी अच्छे से जो हमारी अभी की स्कीम्स चल रही हैं उनका कवरेज नहीं है, उसमें इतने लोगों को रिकग्नाइज ही नहीं करा जा रहा है जितने एक्चुअली हैं, मतलब जितने एक्चुअली स्कैवेंजर्स वर्कर्स हैं इतने रिकग्नाइज ही नहीं हो पाते हैं, नंबर्स बहुत कम आ पाते हैं ऑन पेपर्स, leaving many workers unrecognized and limiting the effectiveness of the financial assistance and training initiative। तो जब वो काउंट ही नहीं करे जाएंगे स्कीम्स के अंदर तो कैसे उन्हें असिस्टेंस मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा या ट्रेनिंग मिल पाएगी, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सेकेंड, अब आ जाता है हमारा हेल्थ रिस्क और क्या हम सेफ्टी मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं सो दैट जो उनकी कंडीशन है दैट कैन इम्प्रूव। फर्स्ट इज़ द हैजार्डस वर्किंग कंडीशन को हम चेंज करें, लाइक जैसे हमने पढ़ा 377 वर्कर्स हैव डाइड ड्यू टू सच कंडीशन, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्यों उनकी डेथ हो जाती है, कई बार दे फॉल इनटू दैट पॉट होल्स, कई बार जो उसके अंदर से गैसेज आती हैं दे जस्ट इन्फेक्ट देयर लंग्स, देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं लाइक उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में एंड ऑल, जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम रिस्क बन जाता है उन लोगों की लाइफ के लिए जो ये क्लीनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द सेफ्टी ट्रेनिंग। नमस्ते प्रोग्राम एम करता है कि वो सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ऐसे लोगों को जिससे कि उनकी हेल्थ रिस्क कम हो जाए और इफ़ेक्टिवली काम हो सके। एंड थर्ड इज़ द इक्विपमेंट एंड मैकेनाइजेशन। जैसे हमने बात करी कि अगर हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी जो लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस पैदा होती हैं उसको हम इम्प्रूव करके रोक सकते हैं, ठीक है। एंड वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन वी डू मोर फॉर दिस। फर्स्ट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स लाइक द नमस्ते प्रोग्राम, ऐसे और प्रोग्राम्स ला सकते हैं जिससे कि उनकी काम में जो उनकी हेल्थ पे रिस्क आ रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकें, उनको सपोर्ट दे सकें। अगर दे गेट द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो देन दे कैन थिंक ऑफ चेंजिंग देयर फील्ड कि हाँ हम ये काम छोड़ के हमारी थ्रेट है लाइफ को तो अब हम दूसरे काम में जा सकते हैं। दिस ऑल्सो बिकम, एंड इफ़ वी गो फॉर मैकेनाइजेशन, अगर हम थोड़ा उसमें टेक्निकल चीज़ें ले आएँ, टूल्स ले आएँ उनके लिए अलग से, ठीक है, तो भी वी कैन रिड्यूस द हेल्थ रिस्क एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, आई होप यू गेट दिस। अब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। Please solve this question and let me know, and you can tell the teachers and they can check your answers too. There is not a big deal. Okay, coming to our next question, next fact, that is the prelims fact. इसमें हमारे पास क्या न्यूज़ क्लिपिंग है, Israel pounds Lebanon, 2 more Hezbollah leaders among dead। ठीक है, अभी आपने देखा होगा हिजबुल्ला का जो लीडर उसको डेड घोषित कर दिया गया है। Israel have attacked their area। ओके, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द रीसेंट एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्लाह हैज़ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज़
विथ टारगेटेड एयर स्ट्राइक की गई हैं इसराइल की तरफ से, एंड लीडिंग टू द डेथ ऑफ द की हिजबुल्ला लीडर्स, एंड दे हैव क्लेम्ड दैट उन्होंने हिजबुल्ला लीडर्स को मार दिया है बिकॉज दे हैव डन एयर स्ट्राइक्स ऑन देयर टारगेटेड एरियाज, एंड इट ऑल्सो हैज़ रिजल्टेड इन सम कैजुअलिटीज़, मतलब कुछ लोकल्स की भी इसमें डेथ हुई है. The ongoing violence underscores the heightened tensions and deteriorating security situation in the Lebanon. This creates a question इनके हमारे सामने कि क्या वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंडीशन है वो ठीक है, क्या जो वहाँ पे कंडीशन ह्यूमन लिविंग कंडीशंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, एंड इट बिकम्स अ क्वेश्चन द नीड ऑफ द आवर कि क्या वर्ल्ड में ये जो चीज़ें चल रही हैं इट क्रिएट्स हमारे दिमाग में क्रिएट कर देती है कि हम सेफ़ हैं अपनी कंट्री में रह के भी, क्योंकि अगर ये अभी वहाँ हुआ है इट कैन हैपन टू आवर कंट्री समडे, कुछ भी हो सकता है ना. ओके, सो दिस क्रिएट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेंशन एंड सिक्योरिटी सिचुएशंस. नाउ कमिंग अप to the places that have been attacked. First is Sidon, that is a southern city where airstrike resulted in significant casualty, including the death of at least 24 people from the strike on 2 adjacent buildings. तो they have what they have done air strikes. उसकी वजह से क्या होता है कि उसके आसपास के एरियाज़ भी इफेक्ट तो होते ही हैं. देखो, जब उन्होंने 2 एडजेसेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया है, व्हेन दे बिल्डिंग्स फॉल अपार्ट, उड़ के जाएगा, उनका मलबा गिरेगा, आसपास की जो जगह होंगी वो भी धंस जाएंगी नीचे, एंड इट हैज़ रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ एटलीस्ट 24 पीपल इन दैट एरिया. नेक्स्ट इज द बैलबेक हेमल रीजन वेयर 21 पीपल वर किल्ड विद एटलीस्ट 47 इंजर्ड. अब आप बताइए ना कि आप लीडर्स, हिजबुल्ला लीडर्स को मारने के लिए तो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर इनोसेंट, उनकी तो बेफिजूल में जान जा रही है. दे आर जस्ट people are running there for just saving their lives for a day, कि आज हमारी जान बच जाए. ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रखी है. दैट इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस, आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला चल रहा है वहाँ पे चीज़. एंड नेक्स्ट इज द बिका वैली, स्पेशली द जोब जिनिन एरिया सॉ एडिशनल फैटिलिटीज़ इन द टारगेटेड रेड्स, एंड दे हैव सीन दैट वहाँ पे रेड्स बढ़ रही हैं एंड अलग कंडीशंस हो रही हैं, लाइक द जॉब जिनिन एरिया. वहाँ पे ऑपरेशंस किए जा रहे थे हिजबुल्ला के लीडर्स को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, एंड दे हैव ऑल्सो इंटेंसिफाइड मिलिट्री एक्शंस. बहुत एक्सट्रीम मिलिट्री एक्शंस वहाँ पे क्रिएट करे गए हैं. नाउ इज़ द क्वेश्चन, द टर्म 2-state solution is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of 2018. किस कंट्री से ये अपना लिंक करता है 2-state solution? चाइना, इसराइल, इराक और यमन. इट इज़ डीलिंग विद द Israel condition, the 2-state solution. Okay. Coming forward to our next news, that is related to our GS paper 3 environment pollution and degradation. So the new news talks about glaciologist S.N. Ramya is conducting research on permafrost collapse in the Himalayas as part of India's Arctic expedition, focusing on its potential role in natural disaster. तो हमारे एक ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं एंड उनका नेम है S.N. रम्या, एंड इंडिया आर्कटिक एक्सपीडिशन के अंदर उन्होंने ये रिसर्च को कंडक्ट किया है, वेर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द परमाफ्रोस्ट कोलैप्स इन द हिमालयाज, एंड इसकी वजह से क्या नेचुरल डिज़ास्टर के रिस्क पैदा हो जाते हैं फॉर आवर नेशन, उसके बारे में बात की गई है. And her work aims to address data gaps and improve early warning system for the vulnerable communities. And her data and her research also talks about what that ki early warning systems क्या होने चाहिए for any natural disaster linked to that permafrost collapse, and the data that have not been mentioned anywhere about these things, and also about the impact on such vulnerable communities that are residing nearby that Himalayan area or range. Okay. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ परमाफ्रॉस्ट. आपको पता होना चाहिए परमाफ्रॉस्ट होता क्या है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो न्यूज़ है वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. देखो, परमाफ्रॉस्ट इज़ अ लेयर ऑफ सॉइल और अ रॉक that remains frozen for at least 2 consecutive years, typically founded in polar and high altitude regions.
ईजी तरीके में आपको समझाऊं तो पर्माफ्रॉस्ट या तो एक लेयर होगी सॉइल की या एक रॉक होगी जो कि फ्रोजन रहेगी, मतलब जिस पे बर्फ़ जमी रहेगी एटलीस्ट फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 2 लगातार साल तक सेम कंडीशन जब रहेगी पोलर या हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे। समझ रहे हो, जो हाई एल्टीट्यूड पे रीजन्स है लाइक हिमालयन रेंज होगी, ठीक है, ऐसे जो पोलर एरियाज हैं हमारे उनमें जब ये कंडीशन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्माफ्रॉस्ट। उसमें मोस्टली क्या होती है, आइस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ट्रैप्ड बिटवीन द सरफेस। उसके बीच में क्या होता है, आइस होती है और नीचे वो एरिया होता है रॉक या सॉइल का, और उसके बीच में क्या हो जाता है, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स दब जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। एज ग्लोबल टेम्परेचर राइज permafrost thaws which can lead to ground instability, erosion and the release of greenhouse gas contributing to the climate change। तो जब हमारा permafrost पिघलता है बेसिकली, जैसे ही हमारा टेम्परेचर एक लेवल के बाद राइज होगा इन रीजन्स में, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर्माफ्रॉस्ट क्या होगा, पिघलेगा एंड इट विल लीड टू व्हाट, इंस्टेबिलिटी। पहली बात तो ग्राउंड जो वहाँ का होगा इट विल बिकम इनस्टेबल। एकदम से जब बर्फ़ पिघलने लगती है ना तो नीचे की जो मिट्टी होती है इट ऑल्सो बिकम्स इनस्टेबल एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इरोजन, इरोड होती चली जाएगी, मिट्टी खिसकती चली जाएगी एंड विल रिलीज द ग्रीन हाउस गैसेज। अब आपको मेंशन करना है कौन कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ओके, एंड ऑल दिस विल लीड टू द क्लाइमेट चेंज। इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जो प्लेन एरियाज हैं हमारे, लो लाइंग एरियाज हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। नेक्स्ट, its degradation poses significant risk to the ecosystem, infrastructure and local community। सबसे पहले तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, रिस्क में आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके आसपास की चीज़ें बनी हुई हैं, वेदर इट बी रोड्स, वेदर इट बी डैम्स, वेदर इट बी योर हाईवेज वाला एरिया हो गया, या फिर हम ब्रिजेस जो बनाते हैं पहाड़ों के बीच में, उनके इफ़ेक्ट होने के बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं। इट विल कोलैप्स and the local communities that reside nearby that area। Are you understanding this fact? Next is the research में हमने क्या main key findings find करी हैं। पहला is the impact on the infrastructure। अगर permafrost thaw होगा मतलब पिघलेगा या कम होता जाएगा, it will create risk for the infrastructure with potential for building and roads to collapse। अभी मैंने आपको बताया building roads collapse हो सकती हैं एंड दिस हैज़ बीन सीन इन कैनेडा। ऐसे सिचुएशन कैनेडा में आकर पहले हो चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो लिंक टू द नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे देयर इज एन इमर्जिंग कोरिलेशन बिटवीन द पर्माफ्रॉस्ट थॉ एंड रीसेंट नेचुरल डिजास्टर इन द हिमालय सच एज द बर्स्टिंग of the South Lohak Glacial Lake in Sikkim, indicating that permafrost dynamics could be contributing factor। और जब ऐसे permafrost होते हैं तो क्या नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिले हैं, लाइक द साउथ लोहैक का जो ग्लेशियल का लेक था, इट जस्ट बर्स्ट आउट और क्या हुआ, पानी बिल्कुल एकदम बहता चला गया, ओके, एंड इट लेड टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। और इससे ये पता लगता है हमें कि अगर ऐसे हमारे फैक्टर्स होते गए पर्माफ्रॉस्ट के तो हमारे जो नेचर के जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। एंड मे बी दिस इज़ द रीजन कि ये जो सिक्किम वाला इंसिडेंट हुआ पर्माफ्रॉस्ट की वजह से ही हुआ हो। नेक्स्ट इज़ द इनसफिशिएंट डेटा। हमारे जो एक्चुअल जो गवर्नमेंट डेटाज होते हैं उस पर काफ़ी गैप फाइंड आउट किया है इस रिसर्च के अंदर हमारी ग्लेशियोलॉजिस्ट ने, कि जो पर्माफ्रॉस्ट की कंडीशन हमारे इंडियन हिमालयाज़ में दैट नीड्स मोर रिसर्च। और ऐसे जो स्टडीज़ हैं वो हो ही नहीं रही हैं, बहुत गैप्स आ गई है उस स्टडीज़ में। हुई होगी, बहुत टाइम पहले हुई होगी, बट अब जो लेटेस्ट कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग की उसके चलते ऐसी कोई स्टडी या ऐसी कोई रिसर्च को कंडक्ट नहीं करा गया, जिसकी वजह से हम ऐसे कंडीशंस के बारे में अनअवेयर हो जाते हैं। ओके, अब विल टॉक अबाउट द थॉइंग ऑफ द permafrost। Hazards associated with thawing of permafrost infrastructure damage। thawing can destabilize, मतलब जो स्टेबिलिटी होती है जब ये permafrost हमारा पिघलेगा बेसिकली, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिल्डिंग्स, रोड, पाइपलाइंस ये सब कोलैप्स हो जाएंगी, डीस्टेबलाइज हो जाएंगी एंड इट विल लीड टू द स्ट्रक्चरल फेलियर्स एंड कॉस्टली रिपेयर्स। उसको रिपेयर करने में वापस से गवर्नमेंट का पैसा लगेगा। इट्स बेटर गवर्नमेंट इनिशिएट सच
रिसर्चेज स्टडी करें ऐसे कंडीशंस के बारे में जिससे कि उनको पहले प्रिवेंट करा जा सके, ठीक है। इरोजन एंड लैंड सब्सिडेंस, पर्माफ्रॉस्ट मेल्ट होगा तो ग्राउंड कोलैप्स हो जाएगा, इरोजन होगा एंड लॉस ऑफ लैंड होगा नियर कोस्ट लाइन्स, और रिवर के जो साइड के एरियाज होते हैं, रिवर बैंक्स होते हैं, दे विल लिटरली जस्ट पानी में वो ढह जाएंगे, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता रहेगा जैसी जैसी हमारा पर्माफ्रॉस्ट होगा, हमारा पर्माफ्रॉस्ट जैसे मेल्ट होगा पानी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो कोस्ट लाइन्स और रिवर बैंक्स जो होंगे ढसते चले जाएंगे अंदर, ठीक है। एंड इट विल क्रिएट अ सिचुएशन लाइक फ्लड फॉर द एरियाज नियर दैट river banks or the coastlines. Okay, it will also create release of greenhouse gases and like stored carbon dioxide, methane, and it will also ill affect the global warming, बढ़ा देगा ये ग्लोबल वार्मिंग को, जैसे ये गैसेस और रिलीज होंगी पर्माफ्रॉस्ट के मेल्टिंग की वजह से, और ये सिचुएशन वर्स हो जाएगी। इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हमारा सॉइल कॉम्पोजिशन है, हमारे मॉइस्चर लेवल्स हैं वो बेकार हो जाएंगे, हमारे फ्लोरा एंड फौना विल बी मेजरली इफेक्टेड, इट विल क्रिएट अ फ्लडिंग रिस्क नियर द वाटर बॉडीज एंड द लो लाइंग एरियाज। एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, जिससे कि हम ये चीज़ों को थोड़ा प्रिवेंट कर सकें, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम कर सकें, लाइक स्मार्ट सेंसर्स एंड IoT इंटीग्रेशन, डिप्लॉय एडवांस सेंसर्स, ऐसे कुछ सेंसर्स वहाँ पे लगाया जाए जिससे कि हम रियल टाइम मॉनिटर कर सकें वहाँ का टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ग्राउंड मूवमेंट, क्या ग्राउंड में हिल रहा है ग्राउंड, या ग्राउंड में कुछ मूवमेंट फील हो रही है, पर्माफ्रॉस्ट हो रहा है उसकी मेल्टिंग की वजह से, ऐसे डेटा कलेक्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिससे कि हम मिटिगेट कर सके ऐसी कोई हमारी नेचुरल कैलेमिटी को। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसे तरीके से बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए जिससे कि वो ऐसी कंडीशंस को अडेप्ट करने में सूटेबल रहे। अगर हमारी जो फ्लड वाली सिचुएशन होते हैं या इरोजन का सिचुएशन होता है, तो अगर हम बिल्डिंग्स, रोड्स ऐसी कुछ बना रहे हैं वहाँ पे उस एरियाज़ में, तो वो ऐसे बने हो कि इन कंडीशंस को वो ओवरकम कर पाए, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स बनती हैं, अर्थक्वेक का है वो बिल्डिंग को कुछ नहीं होता है, खरोच नहीं आती, ऐसी सिचुएशन हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट नीड टू फाइंड आउट सच वेज, सच प्लान्स टू मिटिगेट ऑल दिस। क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स के लिए रिड्यूस कर सकते हैं हम, लाइक सबसे बेसिक स्टेप जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से इज़ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिससे कि ऐसे कंडीशंस हमारे ना हो, पर्माफ्रॉस्ट मेल्ट ना हो। फिर कुछ हमारे बायो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, लाइक द प्लांट नेटिव वेजिटेशन एंड यूजिंग माइक्रोबायल ट्रीटमेंट्स टू स्टेबलाइज पर्माफ्रॉस्ट। पहला तो हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसी कुछ वेजिटेशन वहाँ पे उगाएं, कुछ ऐसी खेती करें जिसकी वजह से जो ये पर्माफ्रॉस्ट मेल्ट वाली सिचुएशन हो रही है हम उसको थोड़ा कम कर सकें, रोक सकें। पूरा तो करना किसी की बस की बात नहीं है क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, बट वी कैन थोड़ा उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसका इम्पैक्ट, और कुछ माइक्रोबायल ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम उसको स्टेबल करके रख पाएँ। एंड अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक एरियाज विद ग्रीन स्पेसेस, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बना के। आपने देखा होगा अगर हमारे यहाँ हल्की सी भी बारिश आती है, मेजरली इन दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा, इवन थोड़ी सी बारिश की वजह से जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है जस्ट ब्लॉक्स, वहाँ पे इतना बुरा है कि बारिश आते ही वहाँ पे पूरी रोडों में पानी भर जाता है, अर्बन फ्लड्स जैसी कंडीशन बन जाती है। तो उसके लिए हमें क्लाइमेट रेजिलेंट अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें मेजर रोल किसका आ जाता है? गवर्नमेंट का, कि क्या गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस ले रही है। नेक्स्ट बिकम्स कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। हम लोकल लेवल पे अपने क्या कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपनी तरफ से क्या स्टेप्स अपने हम कर सकते हैं इंक्लूड, जिससे कि इस चीज़ को हम रोक सके। एंड नेक्स्ट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डेटा कलेक्शन, कि हम डेटा कलेक्ट कर पाएँ, ऐसी स्टडीज़ कर पाएँ जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों के बारे में हमें पहले पता लगे और हम उसके लिए पहले से स्टेप्स उठाने शुरू कर दें। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इट्स वेरी ईजी टॉपिक, इतना कुछ हार्ड नहीं है। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आप इजीली क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द PYQ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट?
पहला है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor. And third is methane in atmosphere oxidized to carbon dioxide after a few decades or two. Please answer this. वैसे तो इसका आंसर दिया हुआ है. So all the options are correct in this. Okay. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ते हो ना, आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ PYQs देखते रहा करिए. उससे क्या होगा, एक तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में. क्योंकि देखो रोज़ इतने करंट अफेयर्स होते हैं ना, हर चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है ना. रोज़ इतनी न्यूज़ हेडलाइंस, रोज़ न्यूज़ क्लिपिंग्स आती रहती है. तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, PYQ हो गए, या आप करंट अपने खुद बना भी सकते हैं क्वेश्चन. जैसे आपने न्यूज़ पढ़ी, आपने खुद ही उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लिए. क्वेश्चन फॉर्म में ना चीज़ों को याद करना थोड़ा ईजी हो जाता है. सो our next topic is from GS paper 3, that is science and technology. It is not just nothing, the dark matter quest close in on dire neutrino fog. The Luke Zeppelin experiment has made significant advancement in understanding dark matter by placing stringent limits on its possible identity. तो इन्होंने dark matter पे कुछ study, कुछ investigation experiment किया है. Despite ongoing challenges and none result, the scientific community remains dedicated to uncovering the nature of this elusive substance. आपने सुना होगा बीच में डार्क होल, डार्क एक्सपेरिमेंट ऐसे चल रहे थे. डार्क मैटर, व्हाट इज इट अबाउट? ल्यूक जेपलिन एक्सपेरिमेंट क्या है? साइंटिस्ट ल्यूक जेपलिन एजेट एक्सपेरिमेंट में है, दैट इज लोकेटेड 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड इन साउथ डकोटा, and they have announced that they placed the test limits on the possible identity of the dark matter particle, and they are basically studying on the possible identity कि हम वो फाइंड कर पाएंगे डार्क मैटर पार्टिकल्स क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या है. ऑल्दो द रिजल्ट वॉज अ नल आउटकम, अभी तक उनको कोई ऐसा आउटकम मिला नहीं है. इट इज़ नल, मीनिंग इट डिड नॉट आइडेंटिफाई डार्क मैटर, इट क्लैरिफाइड वॉट डार्क मैटर कुड बी. उन्हें अभी तक ये तो नहीं पता चला है डार्क मैटर क्या है, बट उन्हें थोड़ा बहुत इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन हो गया कि डार्क मैटर क्या हो सकता है. ओके, अब हम समझते हैं डार्क मैटर के बारे में. डार्क मैटर मेक अप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स मास, with visible matter like stars and planets contributing only 15%, but it does not emit, observe or reflect light. डार्क मैटर क्या है? यूनिवर्स का एक मास है जिसमें हम स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं. दैट हैव ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड 15%. ठीक है, बट दे डू नॉट एमिट, मतलब ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं या ऑब्जर्व नहीं करते हैं लाइट को, या रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं लाइट को, जैसे हमारी नॉर्मल चीज़ें इन्वायरमेंट में कर देती हैं. मेकिंग इट इनविजिबल टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, ऐसा फिनोमिना है. इट इज़ थॉट टू इंटरेक्ट विद ऑर्डिनरी मैटर थ्रू ग्रेविटी, इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द गैलेक्सीज एंड कॉस्मिक फिनोमिना. एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस हमारा जो अगर हम इसकी स्टडी कर लेते हैं तो दे बिलीव कि जो हमारा गैलेक्सीज है, हम कॉस्मिक हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, उनका स्ट्रक्चर समझ पाएंगे. एंड ग्रेविटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे. डिस्पाइट एक्सटेंसिव रिसर्च इट्स एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन रिमेन्स अननोन. अभी इतनी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, फिर भी उसका जो कॉम्पोजिशन है कि जो डार्क मैटर है बेसिकली वो किन चीज़ों से बना है, दैट इज़ अननोन, विद वेरियस थ्योरीज proposing unknown particles as potential candidate for dark matter, and they have been proposing indefinite unknown particles. कुछ भी ऐसे बोल दिया कि हाँ ये हो सकता है डार्क मैटर को, जो उन पे अभी तक उसकी कोई बेसिक ऐसे फाउंडेशनल स्टडी नहीं है. दे आर डिटेक्टिंग डार्क मैटर. The challenges is to detect whether dark matter interacts with atomic nuclei and electron. So they have been trying to find कि जो dark matter है क्या वो atomic nuclei जो होता है हमारा atom का nuclei and electrons से interact कर पाता है या नहीं. And they want to tell, they want to know through their theory that they can touch visible matter. क्या डार्क मैटर टच कर सकता है विजिबल चीज़ों को, बट डिटेक्टिंग दिस इंटरेक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, क्या उनको एडवांसमेंट मिली अपने डिटेक्शन में? दैट दे हैव एक्सपेरिमेंट यूजेस टन्स ऑफ लिक्विड जेनॉन एंड आर्गन टू कैप्चर डार्क मैटर. तो उन्होंने जेनॉन और आर्गन जैसे लिक्विड्स का यूज़ किया है डार्क मैटर को कैप्चर करने के लिए.
एंड रिसेंट फाइंडिंग्स में ये भी फाइंड आउट हुआ है कि दैट डार्क मैटर न्यूक्लियस इंटरेक्शंस एट इवन स्मॉलर स्केल्स दैन प्रीवियसली थॉट, कि जो डार्क मैटर होता है वो न्यूक्लियस इंटरेक्शन बहुत स्मॉल रेंज पे, स्मॉल स्केल पे कर पा रहे हैं जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था. एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अमंग देम अहेड, कि अब क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने. दैट फ्यूचर एक्सपेरिमेंट फेस इंक्रीज नॉइज फ्रॉम न्यूट्रिनोज कंप्लीटिंग द सर्च फॉर द डार्क मैटर. जो नॉइज प्रोड्यूस होती है उसमें से, नॉइज फ्रॉम द न्यूट्रिनोज, वो बहुत ज़्यादा है. दैट कॉम्प्लिकेट्स दैट रिसर्च. And scientists are exploring ways to detect lighter dark particles that would scatter even less of nuclei. और वो ऐसे लाइटर डार्क पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जो न्यूक्लिया है उसको कम स्कैटर करें, ठीक है, उसको बांध के रख पाएँ. कंक्लूजन क्या निकलता है हमें से कि द हंट फॉर द डार्क मैटर कंटिन्यूज टू यूनाइट डाइवर्स टैलेंट इन साइंस, है ना. हमारे साइंस के जितने टैलेंट्स हैं एक जगह मिलके इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने की, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. रिफ्लेक्टिंग ह्यूमैनिटीज रिलेंटलेस क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स. और बेसिकली हमारा मेन मोटो क्या है कि हम यूनिवर्स को अच्छे से समझ पाएँ, क्या है हमारे यूनिवर्स में, क्या एनर्जी सस्टेन करते हैं. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू PYQ. हमारा 2015 का है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइस क्यूब, a particle detector located at South Pole which was recently in the news. तो आइस क्यूब और हमारे पार्टिकल डिटेक्टर जो है साउथ पोल में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर. अभी न्यूट्रिनो हमने इसमें भी पढ़ा था, तो इसलिए क्वेश्चन इसके लिए वैलिड हो जाता है. encompassing a cubic kilometer of ice, it is powerful telescope to search for dark matter. It is very deep inside the ice. तो क्या है इसका सही आंसर? डी, ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. नेक्स्ट कम्स आर कंट्री इन न्यूज़, जॉर्डन. कौन सी कंट्री न्यूज़ में आजकल? जॉर्डन. क्यों है? जॉर्डन बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी. यू नो लेप्रोसी एक बीमारी है और इसको जॉर्डन पहली कंट्री ऐसी बनती है जिसने लेप्रोसी को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया. जैसे हमारी कंट्री ने कौन सी बीमारी को एलिमिनेट किया है? पोलियो को. ठीक है. रिसीविंग ऑफिशियल वेरिफिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और इसको किसने वेरीफाई किया है? अपनी तरफ से तो हर कोई बोल सकता है हमने कर दिया, बट इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरीफाई किया है. अब आप अगर देखें जॉर्डन हमारे ना मैप पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये मैप थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. लोकेशन कि यहाँ इजिप्ट है, जॉर्डन यहाँ लोकेटेड है, इसके पास कौन सी सी है? डेड सी है. सऊदी अरेबिया इसके एडजेसेंट है, इराक है, इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है. ऐसी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है. एंड कौन सी मेडिटेरियन सी, डेड सी और गल्फ यहाँ पे है. ठीक है. इसके आसपास आपको ऐसे पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जॉर्डन, तो आप बता सकते हैं डेड सी है. ठीक है. या कौन सी बड़ी ओशन बॉडी के पास है? मेडिटेरियन सी के पास है जॉर्डन. ऐसे. ठीक है. अब जॉर्डन के बारे में पढ़ते हैं. जॉर्डन इज़ अ अरब कंट्री ऑफ साउथ वेस्ट एशिया. ठीक है. इट इज़ अ रॉकी डेजर्ट ऑफ नदर्न अरेबियन पेनिनसुला. रॉकी डेजर्ट की तरह है ये. इट इज़ नेम फॉर द जॉर्डन रिवर. वहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर. उसी के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है बेसिकली. विच पासिस ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर. वेस्टर्न बॉर्डर से निकल के जाती है. इट ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 91,880 स्क्वायर किलोमीटर. इतना एरिया वो कवर करती है हमारी जो रिवर है. अब इसके बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हो जाती है? नॉर्थ में सीरिया है, ईस्ट बाय इराक है, साउथ ईस्ट एंड साउथ बाय सऊदी अरेबिया है, एंड वेस्ट में है इसके इजराइल लैंड एंड वेस्ट बैंक. ठीक है. ओके, अंडरस्टूड. यही मैंने अभी आपको बताया था. द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री इज अमान. तो जो इस कंट्री का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है अमान. एंड इट इज़ नेम फ्रॉम द एमोनिटीज़ who made the city their capital in the 13th century BC. तो एमॉन इसका नाम क्या है? उन लोगों से पढ़ा है एमोनिटीज़ जिन्होंने इस सिटी को कैपिटल बनाया था 13th सेंचुरी BC में. ठीक है. तो उसकी वजह से इसके कैपिटल का नाम अमान पड़ जाता है. अब जॉर्डन में क्या है? 16 माइल्स है, 26 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द गल्फ ऑफ अकाबा, दैट इज़ द रेड सी इन द साउथ वेस्ट, एंड अल अकबा इन इट्स ओनली पोर्ट इज़ लोकेटेड. 16 माइल्स का तो इसमें हमने वो बता दिया, जिसमें 26 माइल्स की कोस्ट लाइन हो जाती है अल अकबा की, और यहाँ पे ओनली पोर्ट वेयर इट इज़
अल अकबा में लोकेटेड है। इसके मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डेजर्ट है, अपलैंड्स हैं, ठीक है, रिवर है, जॉर्डन वैली है। क्या चीज़ें इनको अलग बनाती है रीजन को, ये पता होना चाहिए आपको। एंड द नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। द डेजर्ट रीजन इज मोस्टली विद द सीरियन डेजर्ट, एन एक्सटेंशन ऑफ द अरेबियन डेजर्ट, मतलब जो इनका मेन डेजर्ट एरिया वो सीरियन डेजर्ट से जुड़ा हुआ है, एंड एक्सटेंशन है किसका, अरेबियन डेजर्ट का, एंड इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ पे है डेजर्ट, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में कंट्री के, एंड इट कंप्राइजेज मोर दैन 4/5 ऑफ इट्स टेरिटरी, मतलब मेजर एरिया डेजर्ट से ही कवर्ड है। इसमें हमारी डेड सी आ जाती है जॉर्डन रीजन में, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक हो जाती है और इनकी करेंसी कौन सी हो जाती है, जॉर्डियन दिनार। ओके, इजी है, समझ आ रहा है? ओके, सो एक PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी? कौन सी ऐसी कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया की जो मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होती है? पहला है सीरिया, बी है जॉर्डन, सी है लेबनन एंड डी है इजराइल। इट बिकम्स जॉर्डन, ठीक है। नेक्स्ट इज आर एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एस्से राइटिंग में एडिटोरियल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एडिटोरियल का हमारा स्टेटमेंट क्या है, कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड मस्ट हैव इंडियन आउटलुक। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि पूरा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है। इससे रिलेटेड आपको ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करा करिए, हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशली निकाल के, जो कि रिलेट करते होते हैं आपके टॉपिक से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने एडिटोरियल के बारे में। इंडियाज एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर ऑफर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर कार्बन फाइनेंस इंटीग्रेशन थ्रू एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड रीवेजिटेशन इनिशिएटिव। तो ये बता रहा है कि जो इंडिया की एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री जो सेक्टर है हमारा, उसका एक क्या पोटेंशियल बन जाता है फॉर कार्बन फाइनेंस। कार्बन फुटप्रिंट सुना होगा आपने, कार्बन एमिशन सुना होगा, उससे रिलेटेड है। एंड थ्रू एफॉरेस्टेशन, एक तो होता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट देना, एफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा पेड़ उगाना, रीफॉरेस्टेशन भी वैसे ही होता है, एंड रीवेजिटेशन इनिशिएटिव, दैट इज ARR इनिशिएटिव। However, the existing global carbon standard pose challenge due to the common practice criteria, which is, देखो हमारे क्या होता है, कॉमन प्रैक्टिस बना दी जाती है जो कि फिर बोले जाते हैं कि सारी स्टेट सारे एरियाज इसको अपनाएं, बट क्या सबकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, ठीक है, वो सेम है? क्या जो इंडिया में लैंड है वो जो फ्रेगमेंटेड लैंड है सबका सेम नहीं है? कुछ स्मॉल होल्डर्स हैं, कुछ लार्ज होल्डर्स हैं, एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटी सबकी अलग अलग है ना। एरिया वाइज हमारे आप देखोगे ट्रीज़ कितने अलग हो जाते हैं, वेजिटेशन कितनी अलग हो जाती है, क्रॉप्स कितनी अलग हो जाती हैं, तो हम कॉमन प्रैक्टिस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। अब हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री 8.65% हमारा टोटल अकाउंट करता है इंडिया के टोटल लैंड को, टोटल लैंड एरिया को कंट्रीब्यूट करता है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री, दैट इज 8.65%, एंड कंट्रीब्यूट 19.3% ऑफ द कंट्रीज कार्बन स्टॉक। और कंट्री के अप्रॉक्स 19.3 एरिया को जो कि कार्बन स्टॉक्स है हमारा, उसको कवर अप करता है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री हमारे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कार्बन फाइनेंस कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कुछ रिसर्च है जो सजेस्ट करती है दैट अगर हम एडिक्वेट पॉलिसी अप्लाई करें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें और इंसेंटिव्स दें जो कि इम्प्लीमेंट हो पाए, देन आर सेक्टर कुड कंट्रीब्यूट एडिशनल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब कार्बन एमिशंस को हम रोक पा रहे हैं ऑफ ओवर 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030, ठीक है। उतना कार्बन जितना कि 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उसको हम कम कर सकते हैं बाय द ईयर 2030। तो कार्बन फाइनेंस कंट्रीब्यूशन हमें ये जस्टिफाई करता है। कार्बन एमिशन रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है इस टाइम पे। कार्बन प्रैक्टिस क्या है हमारी?
In the realm of carbon finance, common practice is a key criteria used to assess whether a project is additional, meaning it goes beyond which is typically done in a given region. तो कॉमन प्रैक्टिस क्या जस्टिफाई करती है कि एक एरिया जो है वो क्या अलग कर रहा है अपने रीजन के अकॉर्डिंग. एक तो कॉमन चीज़ हो गई, ठीक है, और उसके अलावा कोई रीजन क्या कुछ अलग भी अपना रहा है कॉमन प्रैक्टिसेस के अलग. ARR projects क्या होता है? It involves determining whether similar activities are commonly practiced without the financial incentive provided by the carbon credit. और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे AR प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो सब लोग कुछ बिना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के, मतलब गवर्नमेंट जब उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड कर रही है कार्बन क्रेडिट के लिए, तब कौन से ऐसे कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो कि मोस्टली जो हमारी एग्रो इंडस्ट्री है वो अप्लाई कर रही है. अब करंट स्टैंडर्ड्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू द कार्बन स्टैंडर्ड सच एज द वेरास वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड VCS और द गोल्ड स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड्स हैं ये, VCS are the gold standard. If an activity is deemed common practice, it may not qualify for carbon credit. अगर कोई एक्टिविटी को हम कॉमन प्रैक्टिस बोल देते हैं तो वो कार्बन क्रेडिट के लिए जस्टिफाई नहीं करती है. एंड इट हैज़ नॉट बीन सीन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन एडिशनल इन्वायरमेंट बेनिफिट बियॉन्ड द नॉर्म, और वो कुछ अलग नहीं कर रही है हमारी कार्बन एमिशंस के लिए. अब the current definition of common practice in global carbon standard often reflects the realities of large scale agriculture practice. जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही हैं हमारे एरियाज़ में लाइक द लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, US, जिन पे लैंड होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम टाइप की होती है, वो कॉमन प्रैक्टिस को जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम हो जाती है. लैंड बहुत बड़ी बड़ी होती है वहाँ पे, जितनी इंडिया में स्मॉल स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं ऐसे नहीं होती. अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया में क्या है, सबसे पहले तो लैंड जो है हमारा बहुत फ्रेगमेंटेड है, छोटी छोटी सबके पास लैंड होल्डिंग्स हैं. सेकेंडली 86.1% इंडियन फार्मर्स के पास स्मॉल और मार्जिनल लैंड्स ही है जो कि लेस देन 2 हेक्टर्स है. थर्ड है प्लांटिंग प्रैक्टिसेस जो है हमारी लाइक द एग्रो इंडस्ट्री, वो नॉन सिस्टमैटिक है, कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता, स्कैटर्ड वे में सब अपने तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं. एंड इवन प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग साइड क्रॉप्स और स्मॉल पैचेस ऑफ फैलो लैंड, मतलब एक क्रॉप तो उगी रही है उसकी साइड में कुछ ट्रीज़ भी उगा देते हैं. आपने देखा होगा तो बहुत कॉमन है, आप ट्रेन से जा रहे हो या नॉर्मल हाईवे से भी जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी. तो हमारी जो प्लांटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी एडिक्वेट नहीं है. एंड वी नीड फॉर एडिशनल क्राइटेरिया, एडिशनल चीज़ें भी करने की ज़रूरत है फॉर अ कार्बन स्टैंडर्ड बिकॉज दे आर दे आर परसीव्ड एज कॉमन विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. हर चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए ना, कुछ अलग भी होना चाहिए एरिया के हिसाब से. एंड नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक अप्रोचेज, इंडिया को अपनी तरफ से कुछ अपने एग्रीकल्चर लैंडस्केप के हिसाब से अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कॉमन प्रैक्टिसेस के अलावा भी, ठीक है. एंड इवन द स्मॉल एंड द इंक्रीमेंटल चेंजेस इन लैंड मैनेजमेंट सिस्टम such as adopting more systematic agroforestry techniques or utilizing carbon finance to maintain tree cover can be transformative. और अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स अप्लाई करें लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री की टेक्निक्स को बदल दें या फिर कार्बन फाइनेंस में जो हमारा ट्री कवर होता है उसको कुछ अलग तरीके से करें तो भी हमारी चीज़ें अलग हो सकती हैं. उसके बाद जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं इससे दैट इसमें जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लें, है ना, तो हमारी जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है उसको हम ठीक कर सकते हैं. फार्मर्स को एक जगह इंक्लूड कर लें, है ना, एक लैंड बड़ी उनको दे दे, उससे भी हो सकता है कार्बन फाइनेंस में. उसके बाद इनकम स्ट्रीम्स को हम चेंज कर सकें, क्लाइमेट गोल पे काम कर सकें, फिर कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकें. गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है ना इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को इनकरेज करें. इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट तो सस्टेनेबल होगा और हमारा जो रूरल लाइवलीहुड है वो भी इम्प्रूव होगा. क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल जो फार्मर्स है उनको कुछ नहीं बचता है, बहुत महंगी हो गई है. मतलब फार्मर 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है अगर अपने वहाँ से, तो यहाँ तक आते आते हमारे पास आते आते वो चीज़ कम से कम 40 से 50 रुपये की हो जाती है. 4 to 5 टाइम्स उसका प्राइस बढ़ जाता है और उनको क्या मिलता है सिर्फ 10 रुपये, जबकि वो पूरे दिन खेती में मेहनत करते हैं. उसके बाद हमारे कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में. अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री को इंटीग्रेट करें हमारी ARR टेक्निक से, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड रीवेजिटेशन, तो हम क्या कर सकते हैं,
नए सोल्यूशंस ला सकते हैं अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस है उनको फेस करने के लिए। उसके बाद हम इनकम स्ट्रीम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो लो फार्मर्स हैं जिनकी लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो मानसून्स पे डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से उनका चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकम डाइवर्सिफिकेशन है। हर फार्मर के पास सेम लैंड और सेम तो नहीं है, प्लस हमारे हर जगह के वेदर पैटर्न्स अलग अलग हैं जो कि अलग अलग फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कुछ क्रॉप्स को सर्दी चाहिए, कुछ को गर्मी चाहिए, उसकी वजह से वो हो जाता है। तो अगर वो ARR प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हों तो उसकी वजह से इनकम जो डाइवर्सिफिकेशन है वो चीज़ ठीक हो सकती है। सेकेंडली, अगर हम इंटीग्रेट करें ट्रीज़ इनटू द एग्रीकल्चर लैंडस्केप, मतलब जैसे एक लैंड है उसमें आपने क्रॉप्स उगा रखी हैं एंड साइड्स में आपने अलग से ट्रीज़ भी दे दिए जो कि सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द लैंड टाइप, तो क्या हो सकता है जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, जो हमारा डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है उसको ठीक कर सकते हैं और एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं विद एंड कार्बन जो सीक्वेंटाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंड इज़ द इकोनॉमिक गेन्स। ARR प्रोजेक्ट से हम इकोनॉमिक गेन्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी वजह से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको इम्प्रूव होगा। ठीक है, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी जो है उसने बताया है कि ARR जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें, वो हेल्प करेंगे फार्मर्स को। स्प्रेडिंग 19 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 7 स्टेट बेनिफिटिंग मोर ओवर देन 56,600 फार्मर्स। तो अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़ेंगे जिनको एक्चुअली नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द फील्ड्स एंड ऑल, तो हम बेनिफिट्स कर पाएंगे फार्मर्स को। ठीक है, इससे क्या होगा, हम स्केल अप कर पाएंगे, कार्बन फाइनेंस में हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको हम ठीक कर पाएंगे और नए और बेटर अलाइनमेंट्स ला पाएंगे अपने इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। उसके बाद हम एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ इवॉल्व कर सकते हैं, नए चेंजेस ला सकते हैं दैट कुड नॉट ओनली इम्प्रूव आर इंडियन कंडीशन बट हमारा जो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट है या फिर इंटरनेशनल जो हमारे स्टैंडर्ड सेट है उसको भी हम ठीक कर पाएंगे। अपने कॉमन प्रैक्टिसेस जो हैं उसको हम ठीक रिवाइज कर सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं मार्जिनल फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए AR प्रोजेक्ट्स में। एंड ऑल्सो वी कैन वर्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बूस्ट कर सकते हैं अपने जो इनकी इनकम ग्रुप्स हैं उनको, तो ओवरऑल इनकम को। तो हमारे इसका कंक्लूजन क्या निकल जाता है, इट इज़ क्रूशियल फॉर द कॉमन क्रेडिट प्लेटफॉर्म सच एज द वेरा एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड टू रिकोगनाइज द नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक स्टैंडर्ड। जो इंडिया के स्टैंडर्ड सेट है उसको हम इम्प्रूव करने में जो चीज़ें हैं लाइक वेरा एंड गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको हम ठीक कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो so can the full potential of the agroforestry and the ARR initiatives can be realized, that is paving for the greener, more sustainable and economy prosperous future for the Indian farmer। और इससे क्या होगा, हमारा एक तो ग्रीनर हो जाएगा नेशन, फिर सस्टेनेबल होगा और जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, दे विल बी इकोनॉमिकली प्रॉस्परस। क्योंकि अगर हम ग्राउंड रूट लेवल पे देखें ना, देयर कंडीशन इज़ नॉट गुड। जो स्मॉल होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं ना उनकी तो मतलब आप सोचो, दे आर वर्किंग सो हार्ड ऑन द लैंड्स इतने महीने तक, एंड व्हेन इट कम्स टू देयर इकोनॉमिक गेन्स उनके पास कुछ नहीं होता। सब जो बड़े लैंड होल्डिंग्स वाले होते हैं या जो इंटरमीडियरीज हो जाते हैं वही कमा रहे होते हैं। अब आ जाता है व्हाट इज़ द कार्बन मार्केट। थोड़ा ही लंबा टॉपिक है बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये हमारा टॉपिक हमारी जो ये एग्रीकल्चर गोल्स हैं उससे बहुत रिलेट करता है, प्लस इन्वायरमेंट से है, तो ये हमारे 3-4 टॉपिक्स को कवर अप करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक, एंड आई थिंक ये आ भी सकता है। कार्बन एमिशन, कार्बन मार्केट, वैसे भी इंटरनेशनल स्फेयर में देखें तो हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट से रिलेटेड उसमें ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। कार्बन मार्केट्स होते हैं मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जिससे कि हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, एंड वी शुड क्रिएट फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि वो कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सके। इससे क्या होगा, जो बेंचमार्क सेट है उसके लिए भी काम हो पाएगा, जो कैप बॉडी बन रही है, जो कैप इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको ठीक कर पाएंगे। स्पेशल अगर जुरिडिक्शन दी जाए इस चीज़ के लिए तो भी हो सकता है। अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं कार्बन मार्केट के, एक तो होता है कंप्लायंस मार्केट, होता है वॉलंटरी मार्केट। कंप्लायंस मार्केट होता है जो कि मैंडेटरी होते हैं, जहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं जो कि परचेज करती है कार्बन क्रेडिट को
अपने एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो कार्बन क्रेडिट्स परचेज करती हैं गवर्नमेंट से। एंड वॉलेंट्री मार्केट्स कौन से होते हैं, जो कि इंडिविजुअल होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, कार्बन क्रेडिट जो कि एक पॉइंट के बियॉन्ड एमिशंस करते हैं, वो होते हैं, ठीक है। एंड इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर है कार्बन क्रेडिट का इनटू द डिसेंट्रलाइज वॉलेंट्री मार्केट विद इट्स क्रेडिट वर्थ इतने मिलियन 200 to 300 बिलियन पर ईयर हमारा मार्केट बनता है इसका, एंड 17% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई इन द 2022। ओके, अब हमारे जो कार्बन क्रेडिट है, दे रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन आ रहा है और उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारे कम हो रहा है तो हम अपने कार्बन क्रेडिट किसी और कंट्री को बेच सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा हो रहे हो हैं, और इसको हम अलग अलग एक्टिविटीज़ से जनरेट कर सकते हैं, लाइक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बना के, वेस्ट रिड्यूस करके। हम अपने क्रेडिट पॉइंट कैसे बढ़ाएंगे, अगर हम एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें यूज़ करेंगे, वेस्ट कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट कर पाएंगे और रिफॉरेस्टेशन बढ़ा पाएंगे। अब हमारे यहाँ कार्बन टैक्सेस भी लगते हैं दैट आर इम्पोज ऑन द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब दैट polluters pay a tax based on the amount of the greenhouse gases they emit। अगर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, दे पे कार्बन टैक्सेस, जितनी वो एमिट करेंगे अपने नेचर में ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज को, उतना उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन फुटप्रिंट। एंड इन पैसों को हम फंड क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हो जाता है ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है मार्केट में। 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड। अलग अलग कार्बन मैकेनिज्म्स हैं कंट्रीज़ में, जैसे कि इन 2023 कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू रीच इतने 104 बिलियन USD अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एनुअल स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इतने बिलियन पहुंच गया। अब करंट इनिशिएटिव्स क्या ले रही है हमारी गवर्नमेंट कार्बन मार्केट के लिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस उसको रिड्यूस करते हैं और अपने कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स भी ट्रेड कर पाते हैं। सेकेंड इज द CCTS that will commence in 2025-26 allowing non-obligated entities to participate and trade carbon credit। मतलब वो एंटिटीज़ जो अभी तक फील्ड में इतना नहीं थी, उनको हम पार्टिसिपेट कराएंगे और जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसका ट्रेड भी कर पाएंगे कि अगर कोई कम कर रही है तो अपना उसको बेच दे ऐसे करके, एंड देयर सर्टिफिकेट्स विल बी अचीव। द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम उस पर भी काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे एमिशंस रिड्यूस हो पाए। उसके बाद है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इंडियन कार्बन मार्केट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द कार्बन थ्रू रिगरस मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। हम इंश्योर कर पाएंगे जो हमारे कार्बन क्रेडिट्स हैं हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कोई उसमें धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है, उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग हो और प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। अब इंडिया की जो एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है इन कंबाइनिंग फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करने में। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री में, लाइक द एले क्रॉपिंग, जिसमें हम प्लांटिंग करते हैं ट्रीज़ की इन द रोज एंड क्रॉप्स इन बिटवीन, ठीक है। फिर होती है सिल्वर पैस्चर, ये हमारे टर्म्स आ सकते हैं एग्जाम में। कंबाइनिंग लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग विद ट्री फार्मिंग, लाइफ स्टॉक और ट्री फार्मिंग को मिक्स करके। फिर फॉरेस्ट फार्मिंग हो सकती है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, एनहांस बायोडाइवर्सिटी होगी, सॉइल का कंजर्वेशन होगा, क्लाइमेट रेजिलेंस हो पाएगा, क्लाइमेट इंप्रूव हो पाएगा, एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी सबसे पहले तो। फिर हमारे लिए फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो पाएगी, अलग अलग क्रॉप्स इंक्रीज होंगी तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन होगा। फिर लाइवलीहुड में भी स्टेबिलिटी आ पाएगी। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं, कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री की स्कीम है हमारे कंट्री में, जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। एंड एक है फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें हम सब्सिडी और लोन्स भी देते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री वालों को। चैलेंजेस क्या हो जाते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स को भी नहीं है इतनी अवेयरनेस प्रैक्टिसेस के बारे में, क्या उन्हें यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं यूज़ करनी चाहिए। फिर लैंड टेन्योर के बारे में भी कई इशू हो जाते हैं।
ओनरशिप से रिलेटेड हो जाते हैं, मार्केट में एक्सेस नहीं है, फार्मर स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि इतने एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के बारे में वो लोग अवेयर नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है क्लाइमेट चेंज के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया को ग्रोथ देनी है, फिर हमें कुछ सपोर्टिव पॉलिसीज़ लानी है इधर बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअली, और ओवरकम करना है जिससे कि हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकें, हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव कर सकें। दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड जो उनका है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ओवरऑल ये चीज़ें उन तीनों फैक्टर्स पे काम करेगी। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, हमारी आज की न्यूज़ क्लिपिंग्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे प्रिसाइज वे में मैं आपको समझाया है, ईजी लैंग्वेज में भी करके समझाया है, एंड दीज पॉइंट्स हैव बीन मेड, जिससे कि आपको ये पूरा जो आर्टिकल है अगर आप इसको पढ़ने चले ना, आपको ये ऊपर से निकल जाएगी पूरी जो हमने एडिटोरियल पढ़ा है पॉइंट्स में। और इसके अलावा भी हमने कितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डाले इसमें, चैलेंजेस हो गए, करंट प्रोस्पेक्ट्स हो गए, जो कि आपको उस आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है, आई होप आप रेगुलर हमारे करंट अफेयर सेशंस देख रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ द विजन सिविल सर्विस चैनल, एंड हम रोज़ मिलते रहेंगे विद मोर करंट अफेयर्स, मोर टॉपिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चीज़ के लिए, एंड डू फॉलो आवर चैनल जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें फॉर मोर सच थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट सून, बाय।